तुसी सारे ठीक हो ना। मैं थोड़ी रेनू मैम बेटे ते तुहाडा वेलकम करदी हाँ अपनी इकनॉमिक्स की क्लास दे विच ते अपने चैनल क्वालिटी एजुकेशन मोगा ते। तुसी लिटल बिट सरप्राइज तो होंगे कि मैम अज फेस टू फेस आ गए सानू इकनॉमिक्स पढ़ाने दे लई। एक्चुअली अज वाला टॉपिक ही इस तरह का बेटे कि मैनू फेस टू फेस आना ही पैना सीगा। मेरे पिछे लिखा होया देखता तुसी रहे हो, थानू दसदी हाँ, मैं समझानी हाँ सारा कुछ इस टॉपिक बारे भी कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। लेकिन टॉपिक की करन जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अज वाला जिहड़ा भी आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੌਂਗ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਮਸਟ ਹੋਏਗਾ ਬੇਟੇ ਤੇ ਥਿਊਰੀ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੈਗੇ। ਕਾਹਦੇ? ਆਵਰ ਟੌਪਿਕ ਇਜ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਬੇਟੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਗੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਟਰੀ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸਾਰਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਰਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਗੀ ਬੇਟੇ। ਓਕੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੈਮ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਮੋਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂ ਉਹਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਇੰਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੋ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਜਿਹੜਾ ਏਮ ਹੈਗਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ। ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ। ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ, ਪਲੱਸ ਵੀ ਅਤੇ ਮਾਈਨਸ ਵੀ। ਮੇਰਾ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ। ਓਕੇ ਬੇਟੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਬੇਟੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਵਾਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਆਉਣੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 200% ਇਹਦਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਮਾਰਕਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਪਲੱਸ ਐਂਡ ਮਾਈਨਸ ਨਥਿੰਗ ਐਲਸ ਦੈਨ ਦੈਟ। ਕੋਈ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕੋਈ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕੋਈ ਰੂਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਨਥਿੰਗ ਐਟ ਆਲ, ਜਸਟ ਪਲੱਸ ਐਂਡ ਮਾਈਨਸ। ਕਿ ਕੀ ਪਲੱਸ ਕਰਨਾ ਕੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਲੇਕਿਨ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਥਿਊਰੀ 'ਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ MCQs 1 ਮਾਰਕ 2 ਮਾਰਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਓਕੇ ਬੇਟੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਲੈਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵੈਸੇ 3 ਮੈਥਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਆ ਉਹ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਓ ਯੂ ਮਸਟ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਹੈਪੀ ਕਿ 2 ਹੀ ਮੈਥਡ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਤਾਂ ਮਸਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਆਈ ਵਿਲ ਟੈਲ ਯੂ ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਨਾਓ ਐਟ ਦਿਸ ਟਾਈਮ ਆਈ ਵਿਲ ਨਾਟ ਟੈਲ ਯੂ। ਓਕੇ ਬੇਟੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਵਾਉਂਗੀ ਅੱਜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਵਾਚ ਕਰਨਾ, ਵਾਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਐਫਰਟਸ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮੈਮ ਸਾਡੇ ਲਈ ਐਫਰਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤਾਂ ਕਰੋਗੇ ਹੀ ਕਰੋਗੇ। ਓਕੇ ਬੇਟੇ, ਨਾਓ ਵੀ ਵਿਲ ਨਾਟ ਵੇਸਟ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ। ਓਕੇ ਬੇਟੇ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ। ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਕੀ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੇ? ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਐਂਡ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਜਾਣਾ? 31 ਮਾਰਚ 2021 'ਤੇ, ਯਾਨੀ 2020 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ। ਲੇਕਿਨ ਕਦੋਂ? 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੇਖਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਬਾਊਂਡਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਲੇਖਾ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬੇਟੇ? ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਇਹਦਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਫੋਰ ਦ ਟਾਈਮ ਬੀਇੰਗ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੱਦਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਾਊਂਡਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਜੋੜ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ।
ओके हुण तुहानूं ये पता बेटे कि हर एक देश हर एक कंट्री हर एक अर्थ व्यवस्था दे विच आर्थिक क्रियावां चलदियां रहिंदियां ने। एक्चुअली इकोनॉमी चीज़ ही की हैगी है, इकोनॉमी चीज़ ही तां आर्थिक क्रियावां, ठीक है। असीं अपनी रोज़ी रोटी कमाउण दे लई जिहड़े काम करदे हां दोज आर कॉल्ड आर्थिक क्रियावां, ठीक है। हुण उन्हां आर्थिक क्रियावां दे सिट्टे वजों देखो उत्पादन हुंदा, ठीक है। पहले उत्पादन हुंदा, फिर की हुंदा, उस उत्पादन नूं वेच के आमदन हुंदी आ, उस आमदन तो की हुंदा फिर खर्चा हुंदा, ठीक है। तो ये एक प्रोसैस है वो जो चलता ही रहता है। देखो मैं इत्थे लिख रखिया कि उत्पादन होंदा है, प्रोडक्शन होंदी है बेटे, प्रोडक्शन तो की होंदी है डिस्ट्रीब्यूशन होंदी है, यानी कि उत्पादन होगा उहदे तो इनकम होगी, डिस्ट्रीब्यूशन होगी, डिफरेंट डिफरेंट जिहड़े फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होणगे, ठीक है। फिर वो अपनी लोड़ां नूं पूरा करन लई की करनगे, खर्चा करनगे, यानी कि डिस्पोजिशन होगी, एक्सपैंडिचर भी कह दिंदे आ इहनूं, राइट। इहदा मतलब आ किसी भी इकोनॉमी दे विच उत्पादन फिर आमदन ते फिर खर्चा, ये इक्को ही सिक्के दे तीन पहलू ने कि उत्पादन होना है, आमदन होना है, तो फिर की होना है खर्चा। तो ये प्रोसैस बेटे चलता रहना है, यदि ना तो बिगनिंग हैगी आ ते ना ही की हैगा एंड। ये सारा कुछ आप सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम वाले चैप्टर दे विच कर चुके हैं। जे तुसीं भुल्ले नहीं तो फिर वो वीडियो नूं वॉच कर लिया जे नहीं देखी तो हजे तक। ओके स्पीड ज़्यादा तो नहीं लग रही मेरी पढ़ाउण दी। ओके तुसीं हुण मेरे पढ़ाउण दे तरीके दे हैबिचुअल हो चुके हो। अगर तुहानूं स्पीड ज़्यादा लगी तो कमेंट बॉक्स दसना ताकि नैक्सट वीडियो जिहड़ी मैं अपलोड करा न्यूमेरिकल्स कराउण लगे हो इन्नी सुपर फास्ट ना करवावां। ओके तो मैं गल कर रही सी कि किसी भी इकोनॉमी दे विच उत्पादन आमदन ते खर्चा, ठीक है, ये चलता रहता है। तुसीं वो पंजाबी की कहावत सुनी होनी आ, चिट्टी कुकड़ी चिट्टे पैर चल मेरी कुकड़ी पैरों शहरों शहर। मतलब कि पैसा उही हुंदा, हथ बदलता रहता है, कदे आ किसी के हथ च आ जाता है, कदे किसी के हथ च आ जाता है। मेरी आमदन है, मैं बाजार समान लैन जाऊँगी तो मेरे आमदन खर्चे का रूप धारण कर लूगी तो किसी होर दी की बन जूगी, आमदन बन जूगी, ठीक है। लेकिन नाउ द पॉइंट अराइजिज कि जे उत्पादन हुंदा है, आमदन हुंदा है, खर्चा हुंदा है, तो फिर राष्ट्रीय आमदन पता किवें कीती जांदी आ। इन्नी वड्डी कंट्री, इन्नी वड्डी इकोनॉमी जिहड़ी आ, उस इकोनॉमी विच इन्ने उत्पादन के साधन हैगे आ, तो उन्हां दे विच आपां नैशनल इनकम पता किवें करांगे, फिर राष्ट्रीय आमदन पता किवें करांगे। जिवें कि मैं बोलिया कि तीन पहलू हुंदे ने किसी इकोनॉमी दे विच, उत्पादन आमदन ते खर्चा। तो इस तरीके नाल ही तीन मैथड भी हुंदे ने बेटे राष्ट्रीय आमदन नूं पता करन दे। द फर्स्ट इज़ वैल्यू एडिड मैथड, यानी कि मुल वाधा विधि जिन्हों उत्पाद विधि भी कह देंगे है। सेकेंड इज़ इनकम मैथड, यानी कि आमदन विधि। थर्ड इज़ एक्सपेंडिचर मैथड, यानी कि खर्च विधि, ठीक है। जिन्ने थानूं मैं पहला बोलिया कि उत्पादन आमदन ते खर्चा हुंदा, उन्नियां इहदे मैथड्स भी हैगे ने राष्ट्रीय आमदन नूं पता करन दे। ओके तो मैथड जो तिन्नां विचों कोई भी लाना होवे या थियोरैटिकली पार्ट इहदा समझना होवे, चाहे आमदन विधि का, चाहे उत्पाद विधि का, चाहे खर्च विधि का। लेकिन बिगनिंग दे विच आपां नूं जिहड़ी चीज़ समझनी पैंदी आ ओह इह है कि इहदे विच जो नैशनल इनकम पता करी दी है ना बेटे, तो सिर्फ कमाई गई आमदन ही शामिल की जाती है। अर्जित आमदन, अर्जित कमाई गई। हुण अर्जित या कमाई गई आमदन तो की भाव आ? देखो मैं पढ़ा रही हाँ तो मैनूं पढ़ाउण दे बदले च अगर पैसे मिल रहे हैं तो मैं उत्पादन किया है, यानी कि मेरी जो मैनूं वो पैसे मिलणगे तो मेरी कमाई गई आमदन आ, ठीक है। लेकिन एक चोर ने चोरी कर ली तो उहदे कोले भी पैसे आ गए, लेकिन वो कमाई गई आमदन नहीं है बेटे। यू मस्ट हैव टू रिमैंबर दैट, ठीक है। कमाई गई आमदन सिर्फ वो हुंदी है बेटे जिहदे बदले विच अर्थव्यवस्था विच वस्तुआं या सेवावां दा उत्पादन होया होवे। अंडरस्टैंड और नॉट कि कमाई गई या अर्जित आमदन किहड़ी हुंदी है? जिहदे बदले विच वस्तुआं या सेवावां दा उत्पादन होया होया, ठीक है। हाँ जी, तो मैं गल कर रही सी मैथड तिन्नां दे विचों जिहड़ा मर्जी होवे थियोरैटिकल पोर्शन करन लग्या पहलां आपां नूं इहदे सैक्टर्स दे जिहड़े अपने सैक्टर्स हुंदे आ उन्हां बारे जानकारी होनी चाहिदी है। ते तिन्नां मैथड विच ही आपां बिगनिंग च यही लिखना है, ठीक है। किवें आपां हुण सारियां अर्थव्यवस्था दे विच सारे हरेक बंदे दी आमदन थोड़ी घरे घरे जाके पता कर लांगे, ठीक है। शॉपकीपर्स है, फार्मर्स है, डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, टीचर्स है, कंपनी के मालिक हैगे आ, स्कूल के मालिक हैगे आ, रिक्शा चलाने वाले, रेहड़ी चलाने वाले, देयर आर सो मैनी पीपल ओवर देयर इन एन इकॉनमी। दैट्स वाई असीं सारियां दी इनकम किवें पता कर सकते हैं इस तरीके दे नाल कि आपां जाके तुहानूं जोड़ीए तो कहिए भी हाँ जी राष्ट्रीय आमदन आ गई। तो इस करके तीन जिहड़े आ ना वो सैक्टर्स दे विच वंडिया गया होया, जिवें प्राइमरी सैक्टर, सैकेंडरी सैक्टर ते टर्शरी सैक्टर बेटे। हुण जिहड़ा प्राइमरी सैक्टर है उहदे विच की आ जांदा? प्राइमरी सैक्टर च आ जांदा जिहदे विच आपां कुदरती साधनां नूं यूज़ करके
करके उत्पादन करते हैं, जिवें खेती हो गई, ठीक आ, मच्छी पालन हो गया यानी पानी नाल संबंधित काम हो गया, खाना हो गया मतलब खनन का काम हुंदा जिहदे विच आपां कोयला वगैरह जिहड़ा फाइंड आउट करते हैं, मैंगनीज अब्रक जिन्ने भी मिनरल्स हैगे आ वो फाइंड आउट करते हैगे आ। जंगलों के विचों किस तरह का भी लकड़ी का जो लकड़ी नूं कट्टना या कुछ भी आ वो उत्पादन हुंदा, तो वो सारा कुछ प्राइमरी सैक्टर च आ जांदा। फिर आ जांदा बेटे अपना सैकेंडरी सैक्टर। सैकेंडरी सैक्टर नूं पंजाबी विच गौण खेतर कह दिंदे आ। सैकेंडरी सैक्टर किहड़ा हुंदा जिहदे विच निर्माण किया जाता। निर्माण का मतलब ये हुंदा कि जदों जिहड़ियां प्राइमरी सैक्टर दे विच कच्चा माल हो गया, सपोज कणक आ, ठीक आ, वो प्राइमरी सैक्टर की प्रोडक्शन आ, तो वह कणक आ, उस कणक तो तुसी अगे की बनाने हो फैक्ट्री जाके बनता है, बिस्किट्स बना रहे हैगे हो, ठीक है, ब्रैड बना रहे हो एंड सो मैनी अदर थिंग्स यू मेक ओवर देयर, प्रोड्यूस ओवर देयर। दैट्स वाई एक किहड़ा सैक्टर आ गया, निर्माण खेतर आ गया बेटे। निर्माण खेतर यानी जिथे वस्तुआं ते सेवावां दा उत्पादन जो कन्वर्ट किया जाता है तो निर्माण किया जाता, ठीक आ। एंड तीसरा तो लास्ट आ जाता टर्शरी खेतर, जिवें कि मैं तुहानूं पढ़ा रही हाँ, मतलब वो काम जिन्हां विच उत्पादन हुंदा तां है बट नज़र नहीं आता। सेवावां, वकील केस लड़ रहा है लेकिन नज़र नहीं आ रहा उसका उत्पादन किया होया, तो वह की है सेवा खेतर आ। डॉक्टर इलाज कर रहा सेवा खेतर आ, टीचर पढ़ा रहा सेवा खेतर आ, बीमा बैंकिंग दीज ऑल आर इंक्लूडिड इन द टर्शरी सैक्टर बेटे, ठीक है। प्राइमरी सैकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी की आ गया, प्राइमरी आ गया खेती नाल संबंधित, सैकेंडरी की आ गया उद्योगां नाल संबंधित, तो टर्शरी खेतर की आ गया सेवावां दे नाल संबंधित बेटे। ओके, तो जदों भी तुसीं नैशनल इनकम अकाउंटिंग बारे पढ़ना तो सब तो पहला इन्हां तिन्नां सैक्टर्स बारे पढ़ना ते लिखना बेटे। चलो हुण आपां मैथड किहड़ा करन जा रहे हैं अज वाला। टेक अ ब्रेक एंड आई विल टेल यू बेटे। हाँ जी बेटे, तो ब्रेक तो बाद एक बार फिर तो तुहाडा स्वागत है। स्माइल कर रहे हो, ओके। तुसीं कहोगे मैम टीचर घट तो एंकरिंग ज़्यादा करते हैं, इट्स ओके, आई एम ऑल्सो लाइक दैट। तो हुण फिर आपां अगे करन जा रहे हैं बेटे असली अपना उस इंट्रो तो बाद अपना टॉपिक, तो टॉपिक ही हैगा इनकम मैथड वाला, कि अज आपां जो भी न्यूमैरिकल वाले पोर्शन का बेस करन जा रहे हैं, तो की करन जा रहे हैं, किहड़ा मैथड करन जा रहे हैं, इनकम मैथड यानी कि आमदन विधि। हुण आमदन विधि की चीज़ आ? आमदन हुंदी आ काम के बदले विच मिलण वाला पैसा, ठीक है। मैं जे स्कूल जॉब करदी हाँ तो मैनू सैलरी मिलती आ, मतलब मेरे काम के बदले मैनू पैसे मिलते, तनख्वाह मिलती आ, ठीक है। एक मजदूर जिहड़ा है वो सड़क पर मजदूरी करदा तो उन्होंने उहदे बदले विच मजदूरी मिलती है, वेजिज मिलती हैं। इहदा मतलब है जिहड़े उत्पादन के साधन हुंदे हैं ना बेटे, साधन किहड़े आ देखो स्क्रीन पर, लैंड, लेबर, कैपिटल ते ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उत्पादन के 4 साधन है। देखो तुसीं इकनॉमिक्स के स्टूडेंट हो, +2 तुहाडी फिनिश होने वाली हुई पई आ, एग्जाम थोड़े बस कुछ दिन रह गए आने वाले आ, तो थानू ये तो पता ही है ना, मैं थानू हंड्रेड्स ऑफ टाइम ही दस चुकी हाँ कि उत्पादन के 4 साधन किहड़े आ, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, प्राइमरी फैक्टर्स, एक्चुअली प्राइमरी फैक्टर्स किहड़े आ, लैंड, लेबर, कैपिटल ते ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उन्हां 4 साधनों नूं उन्हां दे कामां दे बदले विच आमदन प्राप्त होंदी है, क्योंकि कोई भी काम फ्री च नहीं हुंदा अर्थव्यवस्था दे विच। तो एक लेखा साल विच उत्पादन के जिहड़े सारे प्राथमिक साधन हुंदे आ ना, उन्होंने उन्हां दियां सेवावां दे बदले विच काम, एक देखो तुसीं उन्हां सेवा का मतलब ये नहीं समझ लेना कि सेवा जी मम्मी दे लत्तां घुटणियां सेवा, ये वो वाली सेवा नहीं। सेवा खेतर मतलब वो खेतर जिहदे विच प्रोडक्शन नज़र नहीं आउंदी हुंदी गी, ठीक आ। जिवें मैं हुण तुहानूं पढ़ा रही हाँ तो प्रोडक्शन नज़र कदों आउणी जाके जो तुसीं एग्जाम च मार्क्स लैके आउणे आ, वैसे तो कुछ नज़र नहीं आउणा है ना, चलो ये तो जोक सीगा, लेकिन ये प्रोडक्शन सामने नज़र नहीं आती, कोई भी फिजिकल जी चीज़ है ना वो नज़र नहीं आती भी उत्पादित हुई होगी, तो ये सेवा खेतर हुंदा। ओके, तो आई विल कम अगेन ऑन दैट पॉइंट कि एक लेखा साल विच उत्पादन के जिन्ने भी साधन हुंदे ने यानी प्राथमिक साधन, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, उन्हां दे कम्मां दियां सेवावां दे बदले विच जिहड़े भुगतान मिलते हैं, किहड़े भुगतान, लगान, ब्याज, मजदूरी ते लाभ के रूप में उन्हां दे जोड़ नूं की किया जाता है बेटे, राष्ट्रीय आमदन किया जाता है। तो ये किहड़े मैथड नाल कैलकुलेट किया जाता है बेटे, इनकम मैथड दे नाल कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। हुण तुहानूं पेपर दे विच एक क्वेश्चन आ जाता है शॉर्ट जिहा कि साधन आमदन की है, फैक्टर इनकम की चीज़ है, फैक्टर इनकम। तुसीं दिमाग दे घोड़े बजाओ तो देखो कितना सौखा है, हुणे समझाया साधन
ਆਮਦਨ ਸਾਧਨ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਲੈਂਡ, ਲੇਬਰ, ਕੈਪੀਟਲ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਕੀ ਹੋਗੀ? ਸਾਧਨ ਆਮਦਨ ਹੋਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਮਾਈ ਗਈ ਆਮਦਨ। ਸਾਧਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕਮਾਈ ਗਈ ਆਮਦਨ ਕੀ होगी बेटे? साधन आमदन होगी। ठीक है, नाउ मैं थोड़ा स्लो कराऊंगी, मैं स्पीड थोड़ी घट रखूँगी क्योंकि नमैरिकल दे विच तुहानू ये चीज़ जिहड़ी मैं हुण समझाउण जा रही हाँ दी मस्ट थिंग है कि तुहानू समझ आनी चाहिए। जे ये समझ आ गई समझ लो नमैरिकल समझ आ गया तुहानू। ओके, तो जो तुहानू मैं थ्योरैटिकल पोर्शन करवा रही है ना इनकम मैथड का, तो तुसी पहला इनकम मैथड जिहड़ा भी है उहदा मीनिंग डेफिनेशन लिख दोगे। फिर उहदे विच आपां सैक्टर की पहचान करनी जिहड़ी मैं तुहानू पहला करवा दिता है ब्रेक तो पहला वाले पोर्शन च प्राइमरी सैकेंडरी टर्शरी सैक्टर, तो उस तो बाद आपां ये लिखांगे कि साधन आमदन की चीज़ हैगी आ। ठीक है, हुण अपने कोल आ गया साधन आमदन पता करन लई किहड़े-किहड़े कंपोनेंट्स नूं लिया जांदा है, किहड़े-किहड़े अंश आ जो जोड़े जांदे आ, किहड़ियां चीज़ां माइनस कीतियां जांदियां ने। देखो मैं पहले ही कहता सी कि नमैरिकल खेड कादी आ? प्लस ते माइनस दी। ठीक है, लेकिन की प्लस करना है ते की माइनस करना है ते की प्लस माइनस नहीं करना। इफ थानू ये पता होगा दैन तुसी नमैरिकल कर सकते हो। ठीक है, मैनू तो बहुत डिफिकल्टी नाल समझ आया जो मैं +2 सीगी। मेरे टीचर जिहड़े सी ना वो छुट्टी ते चले गए सी एंड साडे कोले कोई नहीं सी सानू पढ़ाउण वाला। बहुत पुराने जमाने की गल कर रही हाँ मैं, अज तो मैं दसना नहीं किन्ने साल पहलां दी है। फिर ओके, तां हुण आपां फिर करन जा रहे हैं कि इहदे कंपोनेंट्स किहड़े हैगे आ नैशनल इनकम दे पता करन वास्ते। सब तो पहला ये आपां कर्मचारियों का मेन ताना लैने बेटे, कंपनसेशन ऑफ इंपलॉइज, कर्मचारियों का मेन ताना। जो आप कर्मचारियों के मेन ताने की गल करते हैं तो आप देखते हैं कि कर्मचारी यानी काम करने वाले बंदे नूं किस किस फॉर्म के पैसा मिलता है। नंबर 1 ते नगद मजदूरी या तनख्वाह मिलती है उन्होंने। ठीक है, यदा मतलब है आप नैशनल इनकम कड्ढन लगे इनू जोड़िया करांगे। जे नगद मजदूरी लिखिया होया करूगा या तनख्वाह नगद तनख्वाह लिखी होगी तो आप उन्होंने जोड़ांगे। यानी कि तुसीं ये देखना है कि जिहड़ा कंपनसेशन ऑफ इंपलॉइज है ना, ये अंदर अगों पार्ट्स है, ये 4 हिस्से है अगों। ठीक है, हुण तुसीं ये याद रखना है कि जे तां कल्ला कंपनसेशन ऑफ इंपलॉइज पिया होया यानी कि जिहड़ा मजदूरां दा या कर्मचारियों का सॉरी मेन तन है तो तुसीं उवें दा उवें लै लेना पूरे दा पूरा। लेकिन जेकर अगों ये पार्ट्स है, नगद मजदूरी इहदा पार्ट है। ठीक है, मतलब जिहड़ा इंपलॉइज है सॉरी कि जिहड़े इंपलॉइज आ उन्हां नूं नगद मजदूरी मिलती है। ठीक है, दूसरा किस्म के रूप च मजदूरी, ये किहड़ी मजदूरी हुंदी है भला दी? किस्म के रूप च मजदूरी। किस्म के रूप च मजदूरी मतलब नगद नहीं मिलता लेकिन नगद तो इलावा फैसिलिटीज़ मिलदियां ने। फॉर एग्जाम्पल तुसीं नैसले जॉब करदे हो तो तुहानूं जॉब दे विच तनख्वाह तो मिलदी है लेकिन नाल दी नाल तुहानूं मैडिकल अलाउंस मिलता है। ठीक है, उत्थे थानू फूड कूपन मिलते हैं, फूड फ्री मिलता है, थानू उत्थे यूनीफॉर्म्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलदियां हैगियां ने, या थानू एकोमोडेशन मिली हुई हैगी है फ्री ऑफ कॉस्ट दे विच, ये मतलब हाउस रेंट मिलता हैगा। तो मेरा मतलब कहन दा कि जिहड़ी सैलरी मिलती है वो तो मिलती है, वो तो आ गई नगद मजदूरी। लेकिन उस तो इलावा जेकर थानू किसी होर फॉर्म दे विच भी फैसिलिटीज़ मिलदियां ने तो उन्होंने आपां की कहांगे किस्म के रूप विच मजदूरी। तीसरा समाजिक सुरक्षा स्कीमां विच मालकां दा योगदान। समाजिक सुरक्षा स्कीमां च मालकां दा योगदान मैं तुहानूं इहदे बारे समझाऊंगी। देखो जिन्ने भी इंपलॉइज होंदे ने ना वो आपदा प्रोविडेंट फंड कटाउंदे ने, जिन्नी सैलरी हुंदी है उहदा 1% 2% 10% जिन्ना भी कंपनी का रूल होगा वो मान लो वो आपदी इनकम चो कोई भी बंदा 1000 रुपया कटा रहा है। ठीक है, प्रोविडेंट फंड तो 1000 रुपया ही उहदे मालक ने उहदे इंपलॉयर ने उहदे खाते विच नाल पाता भी 1000 तो उन्हें कटाया, 1000 अगों मालक ने उहदे खाते च पाता। समाजिक सुरक्षा स्कीम यानी सोशल सिक्योरिटी स्कीम कि जो रिटायर्ड होगा तो उन्होंने एक पूरा लमसम अमाउंट जोड़ा मिल जूगा। लेकिन जिन्नी देर तक वो रिटायर्ड नहीं होगा उन्नी देर तक वो पैसे कौन यूज़ करूगा? एम्प्लॉयर ही यूज़ करूगा। ठीक है, तो वर्ड है समझना है सामाजिक सुरक्षा स्कीम विच मालकां दा योगदान। समाजिक सुरक्षा सोशल सिक्योरिटी विच स्कीम दे विच मालक ने किन्ने पैसे पाए? मैं 1000 रुपया पाया तो मालक ने भी 1000 पाया, मैं 2000 पाया मालक ने भी 2000 पाया। जिहड़ा मेरे वाला 1000 या 2000 सी वो तो मेरी तनख्वाह चों ही निकलिया होया है, मतलब वो तो फिर मेरे पैसों चो आया, वो तो कोई मैटर नहीं करता। लेकिन
1000 ਜਾਂ 2000 ਉਹ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪਾਤਾ ਉਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਫਿਰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਬੇਟੇ। चौथा आ गया रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन। मैं गवर्नमेंट एम्पलॉई हाँ मान लो, तो मैं रिटायर्ड हुन्नी हाँ आपकी जॉब पूरी करने तो बाद 58 ईयर्स तो बाद, तो 58 ईयर्स तो बाद गवर्नमेंट मैनू पेंशन देंदी आ। वो पेंशन काहदे बदले मिली, तुसीं कहोगे तुसीं तां उदों काम नहीं करोगे मैम, तो फिर तुहानूं पेंशन क्यों मिली? मेरे काम के बदले च तो मिली है ना, मैं प्रोविडेंट फंड भी कटवाया है, ठीक है, मेरे उस पैसे नूं गवर्नमेंट ने यूज़ किया है, तो यदा मतलब है जी वो मैनू रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन है ना, वो क्योंकि काम के बदले विच मिलती है, इस करके उन्होंने भी राष्ट्रीय आमदन च शामिल करते हैं, कंपनसेशन ऑफ इंपलॉइज़ दे विच शामिल करना। तुसीं हुण इत्थों की सिट्टा कढ़िया कि मैं तुहानूं कहा कि जदों आपां नैशनल इनकम पता करनी है तो साधना की आमदन लैनी है। पहला साधन आपां की लै लिया, मजदूर लै लिया, ठीक है, यानी कर्मचारी लै ली। उन्होंने कर्मचारियों को किन्नी तरह नाल पैसे मिल सकते हैं? नंबर 1 नगद मजदूरी मिल सकती है, नंबर 2 किस्म के रूप में मजदूरी मिल सकती है, नंबर 3 उन्होंने जिहड़े उन्हां दे मालक आ उन्हां दी स्कीमां च योगदान दे सकते हैं समाजिक सुरक्षा च, ते नंबर 4 रिटायर्ड होने तो बाद उन्होंने पेंशन मिल सकती है। तो ये चारे चीज़ां राष्ट्रीय आमदन च शामिल करनियां ने इनकम मैथड विच जो राष्ट्रीय आमदन पता करते हैं। लेकिन जे इन्हां चारां चों 3 है तो 3 लै लांगे, 2 है तो 2 लै लांगे, 1 है तो 1 लै लांगे, जे चारे नहीं हैगियां पर कला कंपनसेशन ऑफ इंपलॉइज़ है तो वह लै लांगे, क्योंकि ये चारे उहदे बच्चे है, वो डैडी है। जे डैडी बैठा होगा नाल बच्चे होणगे तो डैडी नूं लै लैना, बच्चिआं नूं छड्ड देना है। चलो उस तो बाद इहदा सैकेंड हिस्सा आ गया, यानी ये तो हो गया वो हिस्सा जिहड़ा मजदूरां नूं मिलना सीगा, ठीक है। उस तो बाद आ गया ऑपरेटिंग सरप्लस, इनू इंग्लिश कहते हैं तो पंजाबी च कहते हैं बेटे परिचालन बेशी। ऑपरेटिंग सरप्लस या एक क्वेश्चन जोड़े अलग अलग भी तुहानूं आ सकते हैं, 2 मार्क 3 मार्क 1 मार्क दे विच ऑपरेटिंग सरप्लस की है, नगद मजदूरी तो की भाव है, समाजिक सुरक्षा स्कीमां च योगदान तो की भाव है। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर, ठीक है, जिन्ने मर्जी क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, तो ऑपरेटिंग सरप्लस की है, परिचालन बेशी तो की भाव है? परिचालन बेशी हुंदी है बेटे पूंजी तो, देखो अपने कोले 4 साधन सी, मैं लिख दी हाँ, एक लैंड है, एक लेबर है, एक कैपिटल है, तो एक की हैगा बेटे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हुण कैपिटल नूं ते ऑर्गेनाइजेशन नूं यानी पूंजी ते उद्यमी नूं उहदे कम्मां दे बदले विच जिहड़ी आमदन मिलदी है, लैंड मैं बोलिया नहीं, लैंड यानी जमीन, ठीक है, कैपिटल ते ऑर्गेनाइजेशन, इन्हां सारियां नूं इन्हां दे कम्मां दे विच जो पैसा मिलता है, जो आमदन मिलती है, वो काहदे च आ जांदी है बेटे ऑपरेटिंग सरप्लस च, यानी परिचालन बेशी विच, ठीक है। इस करके लगान या किराया, लगान या किराया एक चीज़ ही हुंदा है। नाल एक मैं वर्ड लिख रखिया रॉयल्टी, तुसीं जूम करके देखो रॉयल्टी लिखा हुआ है। रॉयल्टी की चीज़ हुंदी आ, तुसीं देखिया होना कि अजकल जो सिंगर है, सपोज मैं एग्जाम्पल थोड़ा नेड़े दी दिन्नी आ, सिंगर है वो कोई सॉन्ग गा देंगे एक बारी, ठीक है, कंपनी नाल उन्हां दा करार हो जाता, कंपनी नाल उन्हां दा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता, ठीक है। तो जदों जिन्नी बारी भी उन्हां दा गाना जिहड़ा किते यूज़ किया जाऊगा तो उन्होंने पैसे मिलते हैं। जिवें लता मंगेशकर है, तो लता मंगेशकर ने अज तो 50 साल पहला जिन्ने भी सॉन्ग्स गाए होणगे उन्हां दी रॉयल्टी उन्होंने अज तक भी मिलती आ। बुक आ, राइटर आ, कोई बुक लिख दिंदा, ठीक है, जो राइटर बुक लिख दिंदा तो वह बुक जिन्नी बारी भी रीप्रिंट होंदी आ, पब्लिश होंदी आ, जिन्नियां भी कॉपीज़ उहदियां सेल होंदियां ने, तो जिन्ने परसेंट भी उहदा करार होया हुंदा, कॉन्ट्रैक्ट होया हुंदा, उन्ना पैसा उन्होंने मिलता रहता है, ठीक है। तो इस करके लगान किराया या रॉयल्टी आ गया। फिर ये ब्याज आ गई, अपन पता ही है कि जी कैपिटल पैसे के बदले अपन ब्याज तो मिलूगी। लाभ आ गया, हाँ जी, तो एक उद्यमी नूं उहदे कम्मां दे बदले की मिलता है लाभ, तो इनू भी शामिल किया जाता है, ठीक है। हुण जिहड़ा लाभ है ना, ये भी अगों 3 हिस्से होंदे आ, लाभ दे लाभअंश, निगम कर ते अणवंडे लाभ। लाभअंश हुंदा है लाभ का वो हिस्सा जिहड़ा शेयर होल्डर्स नूं मिलता है। निगम कर हुंदा है टैक्स जिहड़ा लाभ के उपर लगता है, जिहड़ा देना पैंदा आपां नूं सरकार नूं, लेकिन लगता कदे ते आहो लाभ के उपर। अणवंडे लाभ मतलब लाभ का वो हिस्सा जिहड़ा वंडिया नहीं गया आपस दे विच, उहनूं बचा के रख लिया, इहनूं बचतां भी कह दिंदे ने। काहदे लई कीता जांदा है, ताकि आउण वाले समय दे विच जे कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई मशीन खराब हो गई या कुछ भी है, तो उहनूं यूज़ किया जा सके। लेकिन तुसीं इन्ने पचड़े च नहीं पैणा गा, तुसीं सिर्फ इन्नी गल करो हजे इहनूं समझण वास्ते कि आपां ऑपरेटिंग सरप्लस दे विच 3 चीज़ां लैणियां ने, लगान किराया रॉयल्टी एक चीज़ हो गई,
दूसरी किहड़ी गल हो गई अपने कोले, दूसरी हो गई ब्याज हो गई, तो तीसरा की हो गया लाभ हो गया। जिहड़ा लाभांश निगम कर ते अनवंडे लाभ है, ये लाभ दे बच्चे है। लाभांश निगम कर ते अनवंडे लाभ की हैगा, इहदे बच्चे है लाभ दे। उवें जे लाभ दिता होगा तो लाभ लै लांगे, जे बच्चे दिते होणगे कल्ले तो बच्चे लै लांगे, ठीक है। जे 3 बच्चों च 2 दिते 2 लै लांगे, 2 च 1 दिता 1 लै लांगे, नहीं तो फिर जे लाभ दिता तो लाभ तो फिर लै ही लवांगे। दैट इज़ सो सिंपल। उस तो बाद तीसरा तो सब तो सौखा काम आ गया मिश्रित आमदन। मिश्रित आमदन दे विच की हुंदा है, सैल्फ इंपलॉयड जिहड़े काम करने वाले होंदे है ना, खुद काम जिवें दुकानदार आ, शॉपकीपर्स आ, डॉक्टर्स आ, किसान आ, इन्हां दी जिहड़ी आमदन हुंदी आ उहनूं मिक्सड इनकम दे विच शामिल कीता जांदा है जदों आपां राष्ट्रीय आमदन पता करनी हुंदी आ। तां मैं हुण तुहानूं तुसीं कन्फ्यूज़ ना होवो, सिंपल गल याद रखनी आपां, जदों भी आमदन विधि यूज़ करनी है, जदों भी आमदन विधि यूज़ करनी है, पहला 3 कॉन्सैप्ट क्लीयर होने चाहिए आ। कर्मचारियों का मेहनताना, ऑपरेटिंग सरप्लस ते मिश्रित आमदन मिक्सड इनकम, यानी कर्मचारियों का मेहनताना, पंजाबी विच परिचालन वेशी ते तीसरा मिश्रित आमदन। पहला इन्हां तिन्नां नूं लैके ही स्टार्टिंग होनी है, इन्हां तिन्नां नूं लैके ही जोड़ना है आपां, तो वह की निकल जाना है साधन लागत ते शुद्ध घरेलू उत्पाद निकलना है। यानी कि जे ये पहला जिहड़ा फॉर्मूला ठीक हो गया, फिर कॉन्टीन्यूसली जिहड़ी चीज़ां ठीक होंदियां रहणगियां, ठीक है। इस तो पहला कि मैं नैक्सट जो वीडियो अपलोड करा, थानू ये सारा कॉन्सैप्ट टिप्स से होना चाहिए, अदरवाइज आई विल नॉट अपलोड। तुसी कमेंट सैक्शन दसोगे मैनू कि सानू आ गया, समझ लग चुकी है, तो हुण वीडियो अपलोड कर दो, उदों ही अपलोड होगी। ओके बेटे, तो इहदे विच एक चीज़ याद रख लैनी है, विदेशों तो प्राप्त शुद्ध साधन आमदन, वैसे मैं थानू समझाई हुई है वाली गल, तुहानू मैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम दे विच बहुत डिटेल समझाई सी। विदेशों तो प्राप्त शुद्ध साधन आमदन की हुंदी आ कि साडे निवासी बाहरले मुल्कां च गए आ, उत्थों कमा के इत्थे भेजदे आ, बाहरले मुल्कां दे बंदे इधर आए हुए आ, उहनूं गैर निवासी कहने आ, वो इत्थों कमा के बाहर भेजदे आ। जिहड़ा पैसा साडे वाल आया वो प्लस, जिहड़ा साडे वालों बाहर गया वो माइनस, तो उहनूं की कह दिंदे आ विदेशों तो प्राप्त शुद्ध साधन आमदन। बेटे तो तुसीं ये सारे कॉन्सैप्ट क्लीयर करने अज पहला, ठीक है। फॉर्मूलाज मैं बाद करवाऊँगी, पहला ये कॉन्सैप्ट क्लीयर करने आ। उस तो बाद राष्ट्रीय आमदन जब हम मापते हैं तो उदों कुछ सावधानियां ध्यान च रखनियां पैंदियां। मैं फटाफट इस वीडियो विचों सावधानियां भी दस दिन्नी हां बेटे। हाँ जी बेटे, तो फिर आपां हुण वीडियो दे एंड वाले अज वाली जिहड़ा टॉपिक दे एंड ते पहुँच गया। तो हुण अपना टॉपिक ही आ कि जो भी आपां राष्ट्रीय आमदन दी कैलकुलेशन करनी हैगी आ नैशनल इनकम दी, तो आपां नूं किहड़ियां-किहड़ियां जिहड़ियां सावधानियां ने वो रखनियां चाहीदियां ने। तो ये सिंपल टॉपिक आ, 1-1 मार्क वास्ते भी इंपॉर्टेंट आ। सब तो पहला ट्रांसफर पेमेंट शामिल नहीं करनी आ। मैं ना इत्थे क्रॉस टिक लगाता वै, समझा मैं दिन्नी आ। ट्रांसफर पेमेंट शामिल नहीं करनी आ। ट्रांसफर पेमेंट हस्तांतरण भुगतान की होंदे आ, एक तरफा भुगतान, जिन्हां दे एक तरफा तो काम होया हुंदा लेकिन उहदे बदले च प्राप्ति कुछ नहीं हुई हुंदी। फॉर एग्जाम्पल वजीफा वै, गवर्नमेंट ने स्कॉलरशिप दी है लेकिन गवर्नमेंट नूं अगों उहदे बदले च कुछ नहीं मिलिया, तो इन्हां नूं शामिल आपां नहीं करना। दूसरा आ गया गैर कानूनी कामां तो आमदन, इलीगल चोरी, डाका, लुट खो, इन्हां तो प्राप्त आमदन नूं शामिल नहीं करना। ओल्ड कमोडिटीज़, पुरानी चीज़ कोई खरीदी बेची जाती है, पुराना मकान खरीदिया बेचा जाता है, पुराना समान खरीदिया बेचा जाता है, तो उनके मुੱਲ नूं राष्ट्रीय आमदन च शामिल नहीं करना। कमीशन, पुरानी चीज़ नूं खरीदण वेचण विच या मकान खरीदण वेचण विच आपां नूं एजेंट दलाल हुंदे आ, उन्हां नूं कमीशन देनी पैंदी आ, उहनूं राष्ट्रीय आमदन च शामिल करना है। शेयर बॉन्ड्स तो प्राप्त आमदन नूं राष्ट्रीय आमदन शामिल नहीं करना। विंडफॉल गेन्स, विंडफॉल गेन्स मतलब अचनचेत मिली हुई आमदन, अचनचेत लॉटरी तो आमदन मिल गई, कमाई हुई तो है नहीं, राष्ट्रीय आमदन शामिल नहीं करना। सैल्फ ओनड हाउस, मकान मालिक जिन्होंने मकाना च आप रहिंदे हैगे आ उन्हां दा आरोपित किराया शामिल करना है। सैल्फ कंज्यूम्ड गुड्स, ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ किसान है, किसानां ने खुद अनाज की पैदावार की तो उन्होंने कुछ हिस्सा जोड़ा सी वो आप यूज़ कर लिया तो उनका मुੱਲ शामिल करना है। लेकिन सैल्फ कंज्यूम्ड जिहड़ियां सर्विसिज है उन्होंने शामिल नहीं करना। मान लो मैं अपने बच्चों को खुद पढ़ाता, ट्यूशन पढ़ाती घरे, तो उन्होंने मुੱਲ नूं शामिल नहीं करना। तो मैं हुण फटाफट दसदा, तुसीं वीडियो नूं दोबारा तो रिवर्स करके ध्यान नाल सुन लेना मैं की क्या हैगा। तो ये वाली वीडियो थानू एक बारी वॉच करन ते तां ये लगूगी वो उपरों टप रहा है, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत कुछ मैम ने समझाता। तुसी इसनूं 2-3 बारी घट्टो घट्ट तुहानू वॉच करना पैना है जे कॉन्सैप्ट नूं क्लीयर करना है। कॉन्सैप्ट क्लीयर होगा
ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸੋਗੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਓਕੇ ਬੇਟੇ, ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ। ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰੋ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਬਾਏ ਬਾਏ।